जी मैम, स्क्रीन शेयर हुई है। जी सर, विजिबल है। ओके। Okay, class. Today our fourth lecture of this week, and we will discuss two important question of listening. The first one is matching MCQs, and the second one is map. So, and these are the important signpost word that you should know about. Know them for map because. Speaker usually use these words when they discuss about map question. And we already shared this list for more detail, and you can get it and learn about it. So the important type is matching. Here is few important detail about matching MCQs, and after that we will practice few questions to understand our strategy and tips. What are IELTS listening matching questions? In this question type, you match atom mentioned in the recording to option on the question paper like in the example below. For example, these are a heading A, B, C, D, and these are the question. And mostly the question are in a order, but the option are not in a order. So you should be highlight option during the given time because the question in a order and you can easily follow the recording or listening during the listening test. Matching questions test your ability to follow conversation, listen for detailed information, and identify how facts in the recording are related to each other. How can I answer IELTS listening matching questions? Let's look at how you can approach this type of question using the hotel example above. Read the instruction carefully. Check how many questions you need to answer. For example, question 1 to 4, 1 to 6 are how many given in the test. Check how the matching work. Usually the option more as compared to the question. For example, here 4 question, but the list of option are 5. And if you select any wrong option, might be the chance you can wrong your two question. So you should be more careful when you attempt these question. Take care. Some IELTS listening matching question allow to use each option in a list more than once. Sometime one option you can use for two question. Read the two list. Quickly skim read both lists to see what kind of information you will be listening for. Hotel description and hotel name. The questions are always in a order. First list hotel description. The question may not be in a order, so you need to listen carefully. Mean your question are in a order, but your option not in a order. So you should be pay more attention on a option rather than a question. Keep your eyes on the current option so you do not get lost. Mean when you attempt the matching, you should pay not just question number one is in a rural area, but you should also focus on opened recently. Then you can easily follow a second question after the completion of first one. So this is important.
Highlight keyword, circle or underline names, date, place or keyword in both list and think of possible synonyms or paraphrases for these keyword. Synonyms for rural area, the countryside, the country, rural regions or agriculture area. I mean, the speaker use a different word during listening, so you should also know the meaning of the word in a different sense. Like rural area, you should also the speaker can be used countryside, country, rural region, or agriculture area. The word that you hear that give you the correct answer may not be the same as the word in the question or option. So you should be take care when you listen. Matching question. Where to hear all the information you need. Where to hear all the information you need before you decide on the correct answer. I think the patience is really important when you practice listening because sometimes the speakers gave the answer of the question in the beginning, but sometimes the speaker talk about the general information and take 1 minute, and student usually confuse, maybe they lost the question number one, what should they do. So be patient, so then you can easily follow the recording. You might hear the exact word from one of the option, but this does not mean it is the right answer. Sometimes you will hear several options mentioned close together. So it is important to focus carefully on what the speaker actually says. For example, question 4 asks you to select the hotel that has an indoor swimming pool. So if you read the audio transcript below, you will see the right thing. For example, the Royal Oak has an outdoor pool which is lovely in the summer, but the only hotel with an indoor pool is the Bridges Hotel. What is Bridges Hotel? So you should also pay attention on a contrast word. It does not have a gym, though the Majestic is planning to build a swimming pool and a fitness center, but it's not finished yet. Review your answer at the end. Quickly check your matches. Do the make logical sense? Do you see an option too many time? Sometime we put answer, but logically that answer does not match. So you should also try to analyze at the end. And sometimes you use some option multiple time, so that can also create problem, so you should be understand during listening. So in this website you can also get a lot of free test practice questions, so you can use this website. So now we will practice matching question because these are our final goal to practice our strategy rather than to just learn the theoretical knowledge, because when we practice question then we understand about our mistake. So first we will attempt matching, and after that we will attempt map. Okay, so here we can start. Okay. If student have you any question, you can ask. Then we will start practice. Okay, I think we should start practice. So the first important thing is that to read the instruction, that is important. Then you understand what you need to do. And if you skip this statement, so it's difficult for you
to correct the right answer. Which event in the history of football in the UK took place in each of the following year? Mean these are the event that include in the football in each year. So these are the changes that took place in a different year in the history of football. So you should just highlight some important in the history of football. So you don't need to write football, because football we can easily memorize our practice and our question about football each of the following year. Okay, so I think you should try to read about option rather than question, because question in order and your option is not in order, so you should try to review each option carefully. Events in the history of football, the first one is introduction of pay for the player. Mean in this option they may be describe about in a several year they start giving pay to the player, because we know that in our local area everyone play without any financial benefit. So maybe some teams and maybe some company or organization start different sport and then also pay to the player. So this is the scenario. Maybe this option they discuss in the option, or maybe they skip it. What do you imagine about it? And the second option is changes to the design of the goal. Changes and goal. The first use of light for matches. Mean when they use first time light in matches. Introduction of goalkeeper. Goalkeeper mean when they first time introduce a goalkeeper in football. The first international match. Maybe they discuss in 1870 they started first international match, or maybe they skip it. Two changes to the rules of game. Two changes. Okay, two changes. Games. Introduction of a fee for spectators. Spectator mean ऐसे लोग जो मैच देखने आते हैं। जी सर, ऑडियंस कह लें। हाँ, ऑडियंस कह लें। आप इससे भी इस सेंटेंस से भी आप समझ सकते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ फी फॉर। तो आपके जहन में खुद ही इमेजिन हो सकता है कि किस से वो फ़ी कलेक्ट करते हैं एंट्री के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर मीनिंग आता हो, आप थोड़ा सा रीड केयरफुली करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि फ़ी किसके लिए वो जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एन एग्रीमेंट ऑन द लेंथ ऑफ अ गेम। On the length of the game. Okay. So now we review and we will start. So please listen carefully and give the answer of each question. So you don't need to highlight these options, because these options will be in order. So you should just just pay attention on option. So first we started. Now, the stadium you see today was built in 1989 as part of a 3-year redevelopment project. While that project was going on, the team had to play its matches at the ground of another club. Apart from that, the club has been here on this site since 1870. As some of you may know, that was the start of a really important decade in the history of football in this country. For example, 1870 was also the year that football teams started to include a player
whose role it was to guard the goal. It's hard to imagine what the game. Can anyone tell me which is the right answer? डी, बिल्कुल जो है ना राइट ऑप्शन है डी, कि उन्होंने कहा है कि 1870 में उन्होंने जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना गार्ड कीपर जो है ना गार्ड फॉर फुटबॉल वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर उन्होंने गोलकीपर कहा हुआ है तो उन्होंने यूज़ किया गार्ड। सो द स्पीकर कैन पैराफ्रेज द वर्ड एंड यूज अ डिफरेंट वर्ड फॉर अ सेम मीनिंग, सो यू शुड बी अंडरस्टैंड इट, and when you start thinking like that, so definitely that skill can easily develop. So we will correct T. Okay, next. It must have been like without someone in that position, isn't it? In 1872 and 73, many other clubs were established, both here and abroad. And the following year, in 1874, referees were allowed to send players off if they committed certain offences. And also in that year, teams started having to swap ends at half time. One fact. Can anyone tell me the answer? ओके, मीन के उन्होंने कहा कि दो चेंजिंग जो है ना वो उन्होंने की है। फर्स्ट वन जो है ना जो रेफरी है वो किसी प्लेयर को बाहर भेज सकता है, और सेकंड वन ने कहा है कि हाफ टाइम के बाद जो है ना स्वेप होगी ये जो है ना गेम। तो ये दो चेंजेस जो है ना उन्होंने इंक्लूड किए हैं 1874। सो द ऑप्शन इज एफ। सो देखेंगे उन्होंने सेम वर्ड नहीं यूज किए, द स्पीकर डिडेंट यूज द सेम वर्ड, दे पैराफ्रेज इट, and when you just try to look on the same word, so you will definitely miss the right option. So you should also think to imagine the different way to understand the option. Okay. I was interested to discover was that in early football games, the aim was for the scorer to get the ball between two flag posts, and later between sticks joined at the top with a piece of tape. In 1875, that tape was replaced with the solid crossbar that we're familiar with today. 1870. तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है? एनी स्टूडेंट? अगर आप मिस कर गए हैं तो हम दोबारा जो है ना इसे कर लेते हैं। वैसे उन्होंने कहा कि जो टेप है वो रिप्लेस हुई है सॉलिड क्रॉस बार से। तो रिप्लेस मीन चेंजेस, ओके, चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ द गोल। तो आई थिंक किसी ने भी आंसर नहीं दिया, तो हम सी, यस, नो, थ्री इज बी। आपने फिर जो है ना दोबारा इसके ऊपर जी जी सर, डी है वो। बी सी। है। उन्होंने जी क्या है कि रिप्लेस किया उन्होंने टेप को विद द सॉलिड क्रॉस बार। तो जी सर। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? चेंजेस। तो लिसन अगेन। at the top with a piece of tape. In 1875, that tape was replaced with the solid crossbar that we're familiar with today. जी स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग हुई है? जी आप लोग ना आगे से रिस्पॉन्स किया करें, अगर टाइपिंग नहीं कर सकते, माइक में नहीं बोल सकते, तो रिएक्शन का ऑप्शन है, तो थम्स अप वाला रिएक्शन कर दिया करें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, आपको समझ आ गई है और हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ऐसे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है जब आगे से कोई भी रिस्पॉन्स ना आए। नहीं, वैसे भी स्टूडेंट आप इधर बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड दैट कॉन्फिडेंस एक्चुअली यू रिक्वायर व्हेन यू गो फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट, स्पीकिंग मॉड्यूल, सो वेयर यू and here you can improve it. यस सर, ऑब्वियसली दैट काउंट्स अ लॉट। तो Yes.
Okay, move on. So now question number three is B, and now and you should also observe every question in a order, but the option is not in a order like D, F, B in this order. Okay, the question number four. 1877 saw the founding of further new clubs, and the history books tell us that in the same year, all the clubs decided to set a limit of 90 minutes for each match. Before that, it was a more casual arrangement. G student. About the length of the game. H. जी बिल्कुल, के उन्होंने जो है ना एग्रीमेंट कर लिया है हुआ है कि लेंथ के ऊपर कि कितने मिनट हो, 90 मिनट हो, 20 मिनट हो, लेकिन उन्हें 90 मिनट का है. सो दैट इज द एन एग्रीमेंट ऑन द लेंथ ऑफ अ गेम. सो द राइट ऑप्शन इज एच. सो because option you should be visible, maybe your question not visible because you know that the next question is 1878, but if you just see your question but not see your option, so you definitely miss the right option. Okay, so you know this is 1878, so you should be here and then you can see the option. And this sometimes caused huge arguments and sometimes fights during matches when one team called the end of the game and the other team wanted to play on to try and score a winning goal. By 1878, the number of teams in the Football League increased again. In addition, referees started using whistles and electric lamps were installed on certain pitches. This was a significant change, as G student. I think it's Right. two changes to the rules of the game. F. F. Yeah, two changes to the rules of the game. यस, लेकिन उन्होंने कहा है कि रेफरी जो है ना विसल को भी यूज किया है और लाइट को यूज किया है पिच के ऊपर. तो पिच की जगह उन्होंने यूज कर लिया मैचेस. तो लाइट इज अ लाइट. सो द ऑप्शन इज सी. सो वी आल्सो लिसन इट अगेन बिकॉज यू अंडरस्टैंड इट मोर केयरफुली. यस सर, क्योंकि जो अगर आप विसल की बात करें या लाइट्स की बात करें तो वो कोई रूल नहीं होता या फिर कोई रूल बुक में नहीं लिखा होता। लेकिन जो बिल्कुल हमने ऐसा. पहले दो पढ़ लिए हैं कि इन दो चेंजेस हुए थे रूल्स के अंदर, ठीक है, तो हाँ. वो हम पहले एफ चूज कर चुके हैं, वो हमारा बिल्कुल सूट कर रहा था उस पे। हाँ, तो हमने स्टार्टिंग पर भी रूल पढ़ा था कि हम मल्टीपल ऑप्शन को जब यूज़ करें तो एंड पर हम देखेंगे तो फिर हम डेफिनेट कहेंगे एक ना एक तो अब रॉन्ग है. तो यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि आप एक ऑप्शन को टू टाइम यूज़ कर सकते हैं. जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़े ना इधर, तो अगर इधर उन्होंने कहा हो यू कैन यूज़ वन ऑप्शन मोर देन वन, सो यू कैन बी यूज इट, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज मोर देन वन. ओके, so we listen it again. increased again. In addition, referees started using whistles and the number of teams in the Football League increased again. In addition, referees started using whistles and electric lamps were installed on certain pitches. This लाइट की जगह उन्होंने यूज किया है लैंप्स. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. सो here is C. Okay, student, is it clear? Okay, move on. was a significant change, as games could then be played in the evenings all year round. In 1880, clubs began to charge fans for admission to games, even though players were still amateurs and had other तो अब कौन सा राइट ऑप्शन है 1880 का? हाँ बिल्कुल राइट है कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फैन से चार्ज करना. तो असल में फैन देंगे तो वो भी कमाएंगे, अगर फैन सही नहीं लेंगे तो वो
कमा भी नहीं सकते, तो उन्होंने फिर कहा कि हम फैन से फी भी आप जो है ना लेंगे। तो हेयर इज अ राइट ऑप्शन इज जी। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, क्लिक करते हैं। ओके, so these are the option. Everyone is correct, and here is you can also understand more about it. Mean when you submit, you should also try to read transcript, and you here you can also learn lot of phrases and contrast word that help you to find the correct answer in the next time. Like here the use in addition, referee started using vessel electric lamps. So what they use this phrase in addition to add the information in the previous sentence. Okay, so you should also practice like that. If student you have any question, so you can ask. जी स्टूडेंट, कोई है क्वेश्चन आपका? ओके, तो चलिए फिर हम सर, आगे मूव मैप करते हैं। मैप की तरफ करते चलते हैं। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, आप कर देंगे। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम, इट इज विजिबल। ओके, तो अब हम अगली क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं लिसनिंग की, और वो है मैप लेबलिंग। ठीक है, मैप लेबलिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि कोई हमें मैप दिया जाएगा और हमें उसको लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें एक मैप या कह लें नक्शा दिया जाता है, और फिर उसको लेबल करने के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ABCDE लिखा है कि यहाँ पर कौन सी इस जगह का नाम क्या है। ठीक है, जो कि रिकॉर्डिंग के अंदर यूज होगा। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में लिखा है कि स्केयर क्रो है, मेज है, कैफे है, ब्लैक बार्न है। ठीक है, तो वो आगे हमने ऑप्शंस चूज करने होंगे कि वो कौन सा है, ABCD पे है। ठीक है, यानी कि वो कहाँ पर है। जैसे अगर स्केयर जो है, सॉरी, स्केयर क्रो जो है, अगर वो ए पे है तो हम उसका ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो मैप जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब इसकी टेक्निक क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जो फोकस करना है, मेन फोकस होगा ऑडियो के दौरान हमारा ऐसे कीवर्ड्स पे जो कि हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की डायरेक्शन या लोकेशन बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, फेसिंग टूवर्ड्स, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, एट द एंड, नेक्स्ट टू, नॉर्थ। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमने ज्यादा काम हमारा प्रेपोजिशन का है। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन हमें बताती है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कंपास दिया होता, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वाला डायरेक्शंस दी जाती हैं, तो फिर हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉल्विंग ट्रिक क्या यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या क्या गया है। हमसे 6 जगहों के बारे में पूछा गया है कि स्केयर क्रो कहाँ पर है, मेज कहाँ पर है, कैफे कहाँ पर है, ब्लैक बार्न कहाँ है, कवर्ड पिकनिक एरिया कहाँ है, फिडी हाउस कहाँ है। ठीक है, जो ये ऑप्शंस होते हैं ना, यानी कि ये क्वेश्चन है कह लें, तो ये वाले वर्ड्स एज इट इज यूज होंगे। इनको पैराफ्रेज करने का कोई उसके पास और नहीं है ऑप्शन।
ठीक है, क्योंकि अगर वो मेज को कहेगा तो ऑब्वियसली वो मेज ही कहकर कहेगा। जैसे पिछला जो हमने टेस्ट देखा मैचिंग का, तो 1983 था या 87 था, तो वो सेम वही वर्डिंग यूज कर रहा था अपनी ऑडियो में। ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, और एक एक फायदा आपको और होता है कि जब आप ये सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं, कि जब आप स्केयर क्रो का फॉर एग्जांपल वो बता रहा है, ठीक है, वो बताने के बाद जब मेज पे आएगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की लिमिट यहाँ तक थी, अब आगे से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, हमें अगले ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस तरह से हम अटेंटिव रहते हैं कि अब अगला क्वेश्चन आने लगा। ठीक है, और आगे हमने फिर क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को रिव्यू कर लिया, देख लिया हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। फिर आपने सेकंड स्टेप के अंदर अपने मैप की तरफ आना है। आपने मैप के ऊपर वो चीजें लोकेट करनी है। ठीक है, अगर आपको वो गिवन, ऑब्वियसली वो गिवन नहीं होंगी, जो चीजें गिवन है आपने उनको देख लेना कि रोड यहाँ पर है, फुटपाथ है, फार्म यार्ड है, मेन पाथ है, फिश पूल है, साइड पाथ है, मेन पाथ है, कार पार्क है, ठीक है, और न्यू बार्न और रोड। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह से जब आप रिव्यू कर लेंगे, वो यही नाम यूज करेगा ऑडियो में कि जी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैफे है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मेन पाथ के लेफ्ट के ऊपर कैफे है। ठीक है, तो इस तरह से वो वर्डिंग को यूज करता है, फिर हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये वाली जगह की बात हो रही है। ठीक है, और एक और टिप ये होती है कि आप अपने आप को इमेजिन कर लें एक चीज के स्टार्टिंग पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है यू आर हेयर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने अपने आप को इमेजिन करना है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। वो आगे बोलेगा ऑडियो के अंदर कि इफ यू मूव टूवर्ड्स द फ्रंट एंड लुक एट योर राइट साइड यू विल सी दिस एंड दिस। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलेगा, आप देखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसी तरह से अपनी जो है ऑडियो के अंदर से आंसर्स अपने कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मैम यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम जो है ना रिव्यू के लिए वो कम होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो ऑर्डर में उसने जो है ना स्पीक करने हैं। तो अगर हम अपने गिवन टाइम में जो हमारे पास मैप है उससे ज़्यादा ओवरव्यू करें, उसके बारे में आइडिया डेवलप करें, इमेजिन करें, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा। अदरवाइज़ के आप जो है ना जो क्वेश्चन है उन्हें रीड आउट करें, क्योंकि वो तो उन्होंने आर्डर में बोलने हैं। टाइम कम होने की वजह से जो है ना स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो मैप है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सर ऑब्वियसली टाइम तो कम होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस को रिव्यू करने का मकसद क्या होता है कि हमें पता चल जाए कि वो कब एक क्वेश्चन से दूसरे की तरफ मूव कर गया है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने चीजें कौन कौन सी यहाँ पर सेट बिठानी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को भी रिव्यू करें और मैप को भी रिव्यू करें, लेकिन क्वेश्चंस को देखें पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, एक नजर ही मारनी है आपने ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड। ठीक है, स्केयर क्रो है, मेज है, कैफे है, एक एक दफा पढ़ना है, वन वर्ड क्विक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपने मैप को टाइम दें बाकी। 2 मिनट तो होते ही है ना रिव्यू के लिए। ठीक है, नो आप मैम, 30 सेकंड होते हैं। चलें 30 सेकंड कर लें, आप 10 सेकंड्स अपने क्वेश्चन को दे लें, 20 अपने इसको दे लें, और यहाँ पर भी आपने सिर्फ नाम ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो इजी रहता है, क्योंकि मैं यही टेक्निक यूज करती हूँ और ये काफी हेल्पफुल भी रहती है। बाकी हर एक का अपना अपना तरीका है। मैं क्वेश्चंस को हमेशा इसलिए रिव्यू करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि स्पीकर कब एक फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड की तरफ मूव कर गया है। तो इस तरह से मेरा मिस नहीं होता कोई भी क्वेश्चन। जी चलिए प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑडियो। Section 2. मैम अगर आप ये Now let कंट्रोल me give you माइनस some दबाएं तो ये ideas. जो है ना इसका साइज डिक्रीज हो जाता है स्क्रीन का। क्या दबाऊं कंट्रोल सर? कंट्रोल माइनस का दबाएं ना, प्रेस करें, तो ये साइज डिक्रीज हो जाता है। यस। जी सर, थैंक यू, बहुत हेल्पफुल रहा ये। जी चलिए, अगर हम ऑडियो स्टार्ट करें तो हमें पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, स्केयर क्रो के बारे में, हमने स्केयर क्रो को देखना है। ठीक है, कि वो कहाँ पर है।
of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. ठीक है, उसने यहाँ पर बात की कि हमारे जो लेफ्ट पे है आपके कार पार्क है, ठीक है, और कार पार्क के कॉर्नर पे है, ठीक है, कॉर्नर ये बन रहा है। और दूसरा उसने हिंट क्या दिया कि वो मेन पाथ के साइड पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा स्केयर क्रो वाला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन क्या हम चूज करेंगे? जी, आंसर्स दें अपने। F. जी बिल्कुल, एफ चूज करेंगे हम। ठीक है, तो आप ऐसे अपना कर्सर जहां जहां वो मूव कर रहा है, जैसे वो यहाँ से मूव किया मेन पाथ की तरफ, फिर वो पहुंच गया था फार्म यार्ड की तरफ, कि उसने कहा कि यहाँ से अगर आप सीधे जाओ तो आप फार्म लैंड पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या कहा कि आप अगर मेन पाथ से लेफ्ट पे देखो तो वहां पर कार पार्क है, और कार पार्क के कॉर्नर के ऊपर हमारा स्केयर क्रो है, ठीक है। तो इस तरह से वो मल्टीपल आपको हिंट्स देगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अब सेकंड पे हमने देखना है मेज का, अब वो मेज की बात करेगा कि मेज कहाँ पर है। If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges. ठीक है, किसी को आंसर मिला अपना, या रिपीट करूं? The side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's... Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn, and of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is... It's G. It's G. जी मैम, इट्स जी, क्योंकि Okay. उसने कहा कि जो आपके, तो वो पहले बात कर रहा था स्केयर क्रो की, और उसने साथ ही हमें लोकेशन बता दी मेज की, कि वो उससे ऑपोजिट है। नहीं ठीक है, मैम, और उसने कहा कि It's ये जो opposite आपके to new पास barn. मेज है It's ये opposite न्यू to new बार barn. के ओपोजिट है, जी इसके जी, ओपोजिट है, सॉरी नहीं सॉरी, हाँ न्यू जी, बान के ऑपोजिट है, ओपोजिट, ठीक है। और बिसाइड जहाँ पर राइट पे जाके वो कह रहा है कि Beside the side path. जी। Okay. तो उस लिहाज से ये जी बनेगा। Yeah, now got it. ओके, कंटिन्यू करते हैं made out of hedges. जी। अब आगे हमारे पास आएगा कैफे आएगा। Which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshop.
जी, तो कहाँ पर कैफे उसने बताया? Is it C? Because he said right to the bridge you're walking on. जी, उसने बताया था कि कर्व के ऊपर है। अगर ब्रिज को हम क्रॉस करें तो जो साइड पाथ के ऊपर कर्व आएगा ना वहां पर है। तो कर्व कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व आ रहा है तो सी आएगा ऑप्शन। जी मैम, मुझे भी पहले बी लगा था, लेकिन जब उसने कहा ना कि कर्व आ गया, तो जब कर्व की बात आई तो मैंने कहा यहाँ पर तो कोई कर्व नहीं है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। और ठीक है। फिर उसने साथ में हम ये भी बोला है कि राइट, जब आपने ये Yes, right. इसे पास आउट करना है तो आपने राइट की साइड पर आपका कैफे है। हाँ जी, Exactly. दोबारा से सुन लेते हैं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। Well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts come to. Walk along the side path and the cafes on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. फिर बाद में आगे बिल्डिंग की बात करने लग गया। ठीक है, ऑन द कर्व में उसने कह दिया कि कैफे है। आगे सुनते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है अपना ब्लैक बार्न कहाँ पर है। As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking. ठीक है, Is it H? जी आई ऑल्सो थिंक सो। मैम आई थिंक एच है, जी Yeah, रिपीट because कर। he said to the right and at क्योंकि the उन्होंने side कहा है ये bar. जो न्यू बार ना यहाँ से आपने टर्न लिया है राइट Yes, की तरफ, और आगे or फिर जो है side ना bar. आप तब पास आउट टर्न हुए हैं तो फ्रंट पर वही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा है। दोबारा देख लेते हैं जिनको कंफ्यूजन। Come to the Black Barn, just where the path first bends. Right here, just by the new barn, courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Yeah, so Now, it I says mustn't forget पाथ फर्स्ट बेंड्स। ठीक है, पहला बेंड यहाँ पर आ रहा है। अगर हम न्यू बार्न से साइड पाथ की तरफ आए तो पहला जो टर्न है या कर्व है, बेंड है, वो एच की तरफ आ रहा है। तो एच हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमने देखना है कवर्ड पिकनिक एरिया। ठीक है। to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. जी, उसने क्या कहा कि फार्म यार्ड के अंदर आप राइट के ऊपर आपको मिल जाएगा कवर्ड पिकनिक it's एरिया। B. जी। आई थिंक मैम बी है, जी सर, बी लगाएंगे। ये फार्मलैंड है और उसके राइट के ऊपर जो है ना ये बी है। जी जी जी, अब एट लास्ट वो कह रहा है कि मैं फिडी हाउस का बताऊंगा। ठीक है, उसने बताना शुरू कर दिया था, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। Last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but जी, ये काफी सिंपल था। उसने कहा कि आप ब्रिज को क्रॉस करें, लेफ्ट को हो फुटपाथ के ऊपर से, और फार्म यार्ड की The राइट left of के the farmyard. Yes.
तो उसने हमें 2 से 3 हमें Hints हिंट्स दिए दी हैं। कि ब्रिज को क्रॉस करके फुटपाथ के साथ जाना है, फिर रोड के अक्रॉस है, ठीक है। और तीसरा क्या हिंट है कि वो फार्म यार्ड के लेफ्ट पर है। लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड का। जी। और एक और बात मैप लेबलिंग में ये होती है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं, यानी कि ABCD, लेकिन क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ 6 हैं, ठीक है। यानी कि और जो ऑप्शन ABC होंगे ये ज्यादा होते हैं हमेशा जितने हमारे क्वेश्चन होते हैं, फॉर जस्ट कंफ्यूजिंग अस। तो इनमें से काफी तो हमें ये हमारे इस्तेमाल में भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। सबमिट करते हैं फिर देखते हैं। जी हमारे 2 गलत हैं, देखते हैं कैसे। जी पहला हमारा ठीक था, हमारा थर्ड रॉन्ग। थर्ड पे, इफ यू वांट टू गो टू कैफे, गो टूवर्ड्स द ब्रिज एंड टर्न राइट जस्ट बिफोर इट, वॉक alongside the side path and cafes on the first bend you come, ठीक है। उसने क्या कहा कि आप ब्रिज से क्रॉस करें, ठीक है, उसके बाद आप राइट लें उसका, ठीक नहीं है। मैम, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो मैम, वो ब्रिज है ना कह आपके रहा है पास, कि ब्रिज से जस्ट बिफोर। पहले बिफोर आपने टर्न जस्ट लेना है बिफोर। राइट, और पहली साइड पर ही आपके पास जो है ना हाँ, वो कैफे है, तो ब्रिज वो से ठीक है। पहले राइट टर्न लेना है और फर्स्ट बैंड पे डी है, तो हम्म। डी वाज द राइट आंसर। जस्ट जी बिफोर वाला जो है ना फ्रेज, वो हम लोगों ने मिस कर दिया शायद, इस वजह से सारे ही सी की तरफ चले। जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हमने ये वाली लोकेशन नहीं अपनी चूज की, कि उसने कहा कि आप नहीं मैम, हमेशा लोकेशन यहाँ। हमने सिलेक्ट की, लेकिन हम जो है ना बिफोर मिस कर गए हैं। हाँ जी, जस्ट बिफोर मिस करके हमें पुल, हाँ। जो ब्रिज है वो क्रॉस नहीं करना था, उससे पहले ही राइट टर्न लेना था। जी हम्म। तो वो हमारा इस वजह से गलत हुआ, ठीक है। देखें छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से देखें कि एक पूरा हमारा आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड क्या था, जस्ट बिफोर, ठीक है, लेकिन वो एक की रोल प्ले कर रहा था ऑप्शन के चूज करने के लिए, हम्म। ठीक है। 5 और का क्या हमने चूज किया, हमने आई किया। थिंक मैम, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसे रॉन्ग कर दिया है, तो अब जो क्वेश्चन 5 था वो जो था ना सी था, तो वो फिर हम सेलेक्ट नहीं थे कर सकते। तो मेन वजह फिर वही हुई है कि जब आप एक रॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं उसकी वजह से आपके एक एक्स्ट्रा जो है ना वो भी रॉन्ग हो जाता है। जी सर, ये तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट उसने बोली, और इफ यूड प्रेफर अ कवर्ड पिकनिक एरिया, देयर्स वन नियर द फार्म यार्ड, जस्ट आफ्टर यू क्रॉस द ब्रिज देयर्स अ कवर्ड पिकनिक स्पॉट ऑन द राइट, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम यहाँ फ्रेज है, जस्ट आफ्टर यू क्रॉस द ब्रिज। जी, वो पहले क्या था, जस्ट बिफोर, और यहाँ पर जस्ट आफ्टर यू आफ्टर। क्रॉस द ब्रिज, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये हमारी एक राइट और, साइड सी। जी तो देखें। और इम्पोर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, जैसे यहाँ पर आया ना बिफोर इट एंड जस्ट आफ्टर, ये जो है ना आपको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना चाहिए कि ये आपके लिए फिर जो है ना हेल्पफुल होगा कि किस तरह की जो है ना स्पीकर लैंग्वेज यूज़ करता है मैप में। जी बिल्कुल सर, इसको हाईलाइट करना चाहिए हमें, ठीक है। और इसी तरह के जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसी तरह से हमारी गलतियां निकलती हैं। और अगर हम्म। हम उसकी उनको वहीं पर कैच कर लें तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस ताकि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो गलतियां आप अपनी खुद निकाल लेंगे वो बेहतर है, बजाय इसके कि एग्जामिनर आपकी गलतियां निकाले। जी, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अभी 8 मिनट है हमारे पास, कोई क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। पिछले जितना भी हो गया अब तक, वहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। मिस फातिमा, एक क्वेश्चन था मुझे कि हम लोग जब एक्चुअली एग्जाम में बैठे होंगे एंड वी वुड बी डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो उस वक्त हमें ऑडियो स्टॉप करने का तो ऑप्शन नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो जी we would be marking our answers on this very map, or we would have options
on another side to tick it, और क्या करना होता है exactly, how to mark the right option, या बबल्स फिल करने होते हैं या सर्कल करना होता है उस स्पेसिफिक लोकेशन को इन द मैप? अब मैम इसका आंसर ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना टेम्पलेट, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट इसी तरह का होगा। जैसे यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ पर भी आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। कोई फिलिंग आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन कि अगर आप फिलिंग का ऑप्शन हो फिर तो आप वैसे ही जो है ना काफ़ी क्वेश्चन मिस कर सकते हैं फिलिंग में, क्योंकि टाइम लगता है। तो जैसे ये है ना आपके पास लेआउट, ऑलमोस्ट ओके, इसी तरह का लेआउट आप वहाँ पर देखेंगे। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वरन हम लोग वो पेंसिल से मार्क नहीं कर रहे होंगे? Ma'am, no is completely computer based, so there is no option of paper based. ओके। So you should also practice typing because you should need in a writing, and also in some question where you type your answer like section 1 of listening and section 4 of listening. ओके, तो इसका मतलब है हम लोगों को अपनी टाइपिंग स्पीड भी इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि Definitely, ma'am. ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। Definitely, ma'am. जी ओके। मैम, हमारा जो होता है कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और जो पेपर बेस्ड भी होता है। ठीक है, ये टोटली अप टू यू होता है, लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड होता है ना, प्रेफर अब वही किया जाता है कि आप वही करें। ठीक है, एक तो वहाँ पर एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा उसके रिजल्ट्स जो है ना जल्दी आपको मिल जाते हैं, तो नहीं मैम, इसलिए। अब जो लेटेस्ट है ना, अब वो ख़त्म हो गया पेपर बेस कंप्लीटली एलिमिनेट। में भी किसी बड़े शहर में कोई 2 महीने में एक सीट मिल जाए, अदरवाइज नहीं है। मैंने काफ़ी जो है ना इसके ऊपर रिसर्च की थी। सर मैंने जो है ना जब बुक करने मतलब वेबसाइट खोली थी मैंने बुक करने के लिए, तो वहाँ पर ऑप्शन था कि आपने मैम कंप्यूटर बेस्ड करना है या फिर पेपर बेस्ड करना है। बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन थी, लेकिन जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको कहीं पर जो है ना नहीं मिलेगी, कोई भी सेंटर नहीं मिलेगा। ऑप्शन है लेकिन सेंटर नहीं मिलेगा। जी सर, वो ऑब्वियसली वो प्रेवलेंस इतनी नहीं है उसकी, तो रेयर ही होता है कि कोई सेंटर अभी तक पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर चले, क्योंकि वो काफ़ी कह लें कि मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी हैंडल करना। और जो ऑब्वियसली मैम हमें अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ी सी ट्रिक्स भी हमें जैसे हम अभी यूज़ कर रहे थे जब नोट कंप्लीशन था, कि हम जो ऑप्शंस थे उनके सारे वर्ड्स कैपिटल में लिख रहे थे। वो इसी वजह से लिख रहे थे कि हमारी कोई जो एरर ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। ठीक है, तो वो हम नहीं लिख पाते कभी, ठीक है, जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सारे ही कैप्स में लिख देते हैं। ठीक है, और चैट में क्वेश्चन है, मैम टेस्ट में ऑडियो स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, पर सारे आंसर्स एक साथ कैसे याद रखें जैसे आंसर्स करेक्ट हो। मैम आप साथ साथ आंसर्स लगाएंगी। ठीक है, जैसे हमने वो बोलता है ना, वो एक क्वेश्चन के बाद कह लें कि 1 से 2 सेकंड का पॉज जरूर लेता है, तो आपने सिर्फ ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, तो वो आप कर सकती हैं उतने टाइम में। और उसके दूसरी बात, जब आप ये एग्नोवेट या वेबसाइट्स के ऊपर प्रैक्टिस करती है ना, तो उससे भी आपकी डबल वर्किंग वाला काम ना हो जाता है, क्योंकि आपने जब नोट कंप्लीशन में ज़्यादा लिखने वाला होता है कि क्या 1 वर्ड या 2 वर्ड लिखने होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि हमने डबल करना होता है काम। सुनना भी होता है, लिखना भी होता है, और तीसरा काम हमने अपने स्पेलिंग्स का रिव्यू भी करना होता है। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये आपको करनी पड़ती है, और ये कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ। या हम मैप लेबलिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें फिर क्वेश्चन सही से कर सकते। जी मैम बिल्कुल, कोई कोई भी क्वेश्चन टाइप है, आप उसकी स्ट्रेटेजी को पहले देखें। ठीक है, और आपने ये नहीं करना कि एक ही स्ट्रेटेजी को लेकर चलें और सारे क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं मैम, क्योंकि हर क्वेश्चन टाइप की जो स्ट्रेटेजी है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, और यहीं से आप जब स्ट्रेटेजीज को पहले सीखें, बाद में आप उसको ऑल ओवर करने की कोशिश। हाँ, ठीक है, बहुत फिर है ही नहीं।
इतना मुश्किल नहीं है मेरे नजदीक। जो मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा आसान जो है वो हमारी लिसनिंग मॉड्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कम लिखना पड़ता है और हमारा जो है ना एज बहुत ज्यादा होता है कि हमारे मार्क्स 9/9 आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली आप अगर पहली बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नहीं आएंगे 9/9, लेकिन आपने डिसहार्ड नहीं होना। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाएं, इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, और हर एक पर्सन का वेरी कर रहा होता है। जो अडेप्टिव सिस्टम होता है ना हमारा, कि हम कितना जल्दी कोई ट्रिक को सीख लेते हैं। मैम यहाँ पर मैं एक ओके। बात ऐड करना चाहूँगा, ये काफ़ी जो है ना हेल्पफुल है। असल जी जो जी। आपकी इम्प्रूवमेंट है स्टूडेंट, वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं आती, जब अपनी आप मिस्टेक करेक्ट करेंगे ना तब वो आपकी जो है ना इम्प्रूवमेंट होगी। सम स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं ऐसा करता हूँ कि एक दिन में 2 टेस्ट 3 टेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो उतनी इम्प्रूवमेंट होगी, तो कसम से आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। बल्कि जो आपने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड बर्न आउट होगा, तो आप फिर जो स्ट्रैटेजी है वो रॉन्ग वे से यूज़ करते जाएंगे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, बजाय आपको फ़ायदा हो वो आपका नुकसान होगा। आप एक टेस्ट करें स्टार्टिंग के ऊपर, और उसके करने के बाद उसे फिर बार बार रिवाइज करें, कौन सी मिस्टेक हुई है, क्यों मिस्टेक हुई है, उसे राइट डाउन करें अगर कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। और इस वे से जो है ना आप इसे जो है ना लेकर चलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जी बिल्कुल सर। और इसका बेस्ट तरीका जो मैं समझती हूँ कि ना आपको अपना एनालिसिस करने के लिए है, वो ये है। आप पहले सारे लेक्चर्स ले लें। ठीक है, अपने नोट्स बनाएं कि ये इस क्वेश्चन टाइप के अंदर ये स्ट्रेटेजी है, हमने ये यूज़ करनी है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन टाइप की अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, आपने अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट्स की कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, मॉक टेस्ट एक दें। ठीक है, लिसनिंग का। जब आप वो मॉक टेस्ट देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस क्वेश्चन टाइप में वीक हूँ। मेरी क्या मैं लैग क्या कर रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा है। ठीक है, या फिर मैं सिंगुलर और प्लूरल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। ठीक है, या फिर मेरी कोई और मिस्टेक है कि मैं कंसंट्रेशन लूज कर जाता हूँ या क्या। ठीक है, तो टाइम को आपने फॉलो अभी नहीं करना। ठीक है, जब आप अपनी मिस्टेक ढूंढ ले, ठीक है, जब आपके सही से आने लग जाए, बैंड 8 तक आने लग जाए, ठीक है, तो आपने फिर जाकर टाइम के साथ आपने करने की कोशिश करनी। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आपको स्ट्रेटजी मास्टर कर लेते हैं ना, फिर आपको टाइम भी नहीं लगता इतना सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि जब हम टाइम को देख रहे होते हैं ना, हम कांस्टेंट एक प्रेशर के अंदर होते हैं कि हमने ये टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करना है, हमने ये टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करना है। और जब यही बात हमारे जहन में चलती रहती है ना, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर क्रिएट करती है और हम पैनिक ज्यादा कर रहे होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लूज हो रहा होता है। हमें जो 1 या 2 सेकंड लगते हैं एक वर्ड को पढ़ने सुनने में, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन देने में, वो हम लूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत होता है, अगला गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पैनिक नहीं करना, टाइम को आप बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में रखें। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे प्रायोरिटी मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि टाइम के ऊपर काम लास्ट पर करें। ठीक है, पहले स्ट्रेटेजीज पे करें, फिर अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करें, मिस्टेक्स को ठीक करें, फिर आप मॉक टेस्ट जब दें और आपके बिल्कुल परफेक्ट आप को लगे कि आपकी तैयारी है, फिर आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो सेशन एंड करते हैं, अगला सेशन भी शुरू होना है फिर। मेरा एक क्वेश्चन था कि मॉक एग्जाम्स आप लोग ही कंडक्ट करेंगे और वी नीड टू गो समवेयर एल्स फॉर मॉक एग्जाम? नहीं मैम, सर अली कल फ्राइडे है तो कल हमारा मॉक टेस्ट का डे होगा। मैम आई थिंक कि जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें जो एमसीक्यूज है वो अभी नहीं डिस्कस हुए। अ, कोई नहीं, वो हो जाएंगे कल इंशाल्लाह, हम मॉक करते हैं सर। ठीक है, वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है कि असल में मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो वो उसके So the बेस timings इनको। would be same 5 to 6 because I would be traveling in these timings, यस मैम, intercity द travel. टाइम
Yeah, Can I ma'am, do timing it would be later? Ma'am, yes, you can practice that on your own. This would be only for the purpose of just making you comfortable with the mock test. Okay, and who is going to evaluate? It would be self-evaluation or somebody else